Hello students, welcome back. As in the previous class, we have completed natural vegetative propagation under the main concept of vegetative propagation. So today in this class, we will discuss about the artificial vegetative propagation. So what is artificial? So today we will study about the concept of the artificial vegetative propagation. As I told you in the previous lecture that natural means where there is no interference of the human activities. Humans क्या करते हैं, for one time they take the part of either the root or the stem or the leaf और उसको क्या करते हैं, they grow into the soil. After then, without any interference of human activity, from that part of the plant a new plant grows. Okay, while in case of the artificial vegetative propagation, there is the interference of the human activities. Am I clear? So if you have to define the artificial vegetative propagation, then how you can define it? It is a kind or a type of asexual reproduction in which there is involvement of human activities to grow or to develop a new plant from any of the plant part, any of the plant part, any of the plant part like means the root or the stem, etc. It may be bud also, etc. Am I clear? So this is the name also indicate artificial means students there is involvement of the human activities. And if we talk about the types of the artificial vegetative propagation, then they are basically of four types of artificial vegetative propagation. So what are its types? They are of mainly four types. One is the cutting, okay. Second one is the grafting. Am I clear? Third one is the layering. Is it okay? And fourth one is the tissue culture. So these are the main four types through which artificial vegetative propagation occurs. One is the cutting, second one is the grafting, third one is the layering, and fourth one is the tissue culture. Okay, so now we will study in detail about all these four types. So let's start. So student, please do write in your notes about the definition and all the concepts. So next one is, now we will study in detail about the types of artificial vegetative propagation. So as first type is the cutting. So let's start to study in detail.
the first type, which is the cutting. So what happens student? Cutting, what happen in case of the cutting? Cutting के केस में क्या होगा? We can cut the root or the stem part, and whenever we cut a root part or stem part and grows into the soil, and after then we apply the nutrients like the manure, the fertilizer and water, then it grows into a new plant. Am I clear? How? For example, you can consider stem. First, if we talk about the stem cutting, तो स्टेम कटिंग में क्या होगा? स्टेम कटिंग जो होगा, इट हैपन्स इन रोज, शुगर केन एंड बैम्बू. Am I clear? B, if we talk about the root cutting, then root cutting in case of tamarind. Tamarind, you know बच्चे, tamarind means इमली का plant. C is the leaf cutting. For example in the grass. Now what happened बच्चे? If we consider the example of a rose, तो आप सिंपली क्या देखते हो? Say these are the this is the example of the rose plant, okay, and this portion having node. तो हम क्या करते हैं जनरली इन हिंदी यू से कि हम गुलाब की या रोज की कलम को काटते हैं, तो कलम इज हेयर व्हाट बच्चे? कलम इज दिस स्टेम पोर्शन. इतने स्टेम पोर्शन को, दिस इज द कटेड पोर्शन, हम उस पोर्शन को कट कर लेते हैं, स्टेम पोर्शन को, एंड देन वी ग्रो देम इनटू द अनदर पोट. ओके, दिस इज द स्टेम पोर्शन. अब आप क्या करते हो? आर्टिफिशियली यू प्रोवाइड फर्टिलाइजर और मैन्योर एंड ऑल्सो यू सप्लाई वाटर. तो आप क्या देखते हो? अब देखो आपने इसको कट किया, कट करने के बाद इसको अनदर पोट में ग्रो कर दिया. देन वट एवर यू विल सी कि पेरेंट ये तो था पेरेंट प्लांट, और यहां से जो कट पोर्शन से बनेगा, अगेन यहां से निकलेंगे, ये फ्लावर्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा? ये अनदर प्लांट ग्रो होगा. कहां से हुआ? कट पोर्शन से. अब हम इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन का पार्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज यहां पे जो प्रोपाग्यूल है बच्चे, प्रोपाग्यूल, ये प्रोपाग्यूल सेम पेरेंट प्लांट का है. ठीक है, सेम पेरेंट प्लांट का, इसी पेरेंट प्लांट से लिया गया है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन. व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल? बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटी से वी एड मैन्योर, फर्टिलाइजर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. एम आई क्लियर? सो ये है रोज के केस में. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द रोज. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द शुगर केन, तो शुगर केन में नॉर्मली फार्मर्स क्या कहते हैं? जो आई वाला स्टेम होता है ना, आई इंक्लूडिंग स्टेम को कट करना है, तो आई जो होती है बच्चे, से दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए शुगर केन. तो इन दिस वे ये जो आई बियरिंग स्टेम होता है, आई बियरिंग, आई का मीनिंग इन बायोलॉजी हेयर इट इज नोड, दिस पोर्शन. तो ये नोड बियरिंग स्टेम है. इस नोड बियरिंग स्टेम को क्या करते हैं? यहां से कट कर लेते हैं और कट पोर्शन को सॉइल में ग्रो कर देते हैं. ठीक है, तो वो क्या करता है? उसको अगर हम न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे तो फ्यू डेज के बाद उसमें से रूट्स अराइज होंगी और वो प्लांट क्या है? शुगर केन आगे आगे ग्रो करेगा. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द शुगर केन.
एम आई क्लियर? तो बैम्बू के केस में बैम्बू को भी स्टेम को सेंटर से कट करो और उसको सॉइल में ग्रो करो। तो हो सकता है कि बैम्बू के केस में ऐसा हो कि जिस प्लांट से आपने बैम्बू को कट किया, पेरेंट प्लांट की हाइट स्मॉल हो और जो आपने कट पोर्शन से ग्रो किया है वो पेरेंट के कंपैरिजन में क्या हो, उसकी हाइट टॉल हो। ओके, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्यों हम करते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द डिजायरेबल करेक्टर, कि हम अपनी चॉइस से करेक्टर्स को डेवलप कर सकते हैं। देखो यहां हमने कट क्यों किया? क्योंकि हमें डिजायरेबल प्लांट की नीड थी। यहां भी इसीलिए किया शुगर केन के केस में। एंड इफ यू कंसीडर द रूट कटिंग, टैमरिन के केस में आप रूट को कट करो और उसको आप कहीं और ग्रो कर दो, तो उस रूट से आगे आगे क्या होगा, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ग्रास का एग्जाम्पल कंसीडर करते हो तो बच्चे ग्रास के केस में आप देखते हो ना, ऐसे ऐसे जो गार्डनर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनके पास सीजर होती है, वो ऊपर ऊपर से आप अगर अपने स्कूल कॉलेज का एग्जाम्पल लोगे तो उसमें क्या होगा, ग्रास को ऊपर ऊपर से ट्रिम करती हैं और आप क्या देखते हो, जितना वो ट्रिम करती हैं उतनी मैक्सिमम ग्रास जो है वो ग्रो करती रहती है। ओके, सो इन दिस वे, और वो कट पोर्शन को अगर आप कहीं लगाते हो तो वहां से फर्दर जो है ग्रास ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो इन दिस वे दिस इज द कटिंग। तो कटिंग के केस में क्या होगा, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज कटेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर द डेफिनेशन, एनी plant part. So here I think so I should write the definition at the top. Any of the plant part like root or stem are cutted from parent plant and then grows into soil and artificially nutrients are provided to it. It develops into new plant. Am I clear बच्चे? So this is all about our first type, which is the cutting. Am I clear? So let us start with the second type, and the type is the layering, or I think so I have written here the grafting. So it's your choice. So if we talk about the grafting, so let's start. तो इस कटिंग के केस में हमने क्या किया, कटिंग की जाती है फॉर द डिजायरेबल करेक्टर, और अगर आपको टू डिजायरेबल करेक्टर की रिक्वायरमेंट है देन व्हाट प्रोसेस यू विल फॉलो, यू विल फॉलो ग्राफ्टिंग. So why grafting is required? Grafting is required to get two desirable qualities. तो जो नॉर्मली अगर आप गार्डनिंग, यू आर फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, तो आप जो मेथड फॉलो करते हो वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही है. अब ग्राफ्टिंग के केस में क्या होगा, सपोज वी वांट कि एक ही प्लांट से टू टाइप के क्या हो, फ्रूट्स ग्रो करें. जनरली जो ग्राफ्टिंग है ये फ्रूट के केस में होगा. फ्रूट फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स आर एप्पल, मैंगो,
एंड लेमन। ठीक है, होगा क्या? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसीजर दैट यू वांट कि एक ही प्लांट में दो टाइप के फ्रूट जो है वो ग्रो करें। फॉर एग्जाम्पल, और वो कैसे होनी चाहिए? टू प्लांट्स आप कैसे लोगे? विच बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। से लेट अस कंसीडर द प्रोसीजर हाउ वी डू द ग्राफ्टिंग। तो what will happen in case of the grafting? Say this is a plant, this is the stem of a plant, this portion is in the soil, this is the root, these are the roots, okay, and this portion bearing fruit or the flower. Now what will happen? We will cut the plant from the center. ये कट है, कट मैंने क्या किया है? ऑब्लीक कट किया है। आप या तो ऑब्लीक कट करोगे और वी कट। कट क्यों करोगे? बिकॉज वी वॉन्ट द फ्रूट्स फ्रॉम द सेम प्लांट। तो हम क्या करेंगे? वी विल कंसिडर द प्लांट ऑफ द सेम फैमिली लाइक द लेमन और यू कैन से मौसमी, जो आप कहते हो लेमन और मौसमी, बोथ दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। अब आप ये नहीं कि आप ये कहो एक में आपने एप्पल ले लिया और एक में आपने लेमन ले लिया, तो दोनों डिफरेंट फैमिली से हैं, तो इन दैट केस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन विल गेट फेल्ड। आपको ऐसे टू प्लांट्स को कंसिडर करना है जो क्या हो? विच बिलोंग टू द सेम फैमिली। सो दिस फीचर ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड, यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन। वी हैव टू कंसिडर टू प्लांट्स ऑफ सेम फैमिली। Am I clear? तो मैंने यहाँ ऑब्लीक कट किया या कोई भी कट किया, तो प्लांट इज हियर ग्रोन इनटू, और यू कैन से प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन पार्ट ऑफ द स्टेम हैविंग द रूट एंड वन पार्ट ऑफ द स्टेम हैविंग फ्लावर और द फ्रूट। तो जो रूट बियरिंग स्टेम होता है दैट इज कॉल्ड द स्टोक पोर्शन, दैट इज कॉल्ड द स्टोक पोर्शन, and fruit bearing part of the stem is called the scion portion. Again I am repeating, अगर आप कट करते हो सेंटर से, then you will observe two parts are obtained. One part of the stem with the root portion that is called the stalk, and another part of the stem with the fruit that is called the scion. Am I clear? तो कटिंग के बाद क्या होगा? This is the one portion, this is the another portion, and this portion bearing the root. In this way है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? सपोज ये लेमन का प्लांट था, आप मौसमी को एंटर करोगे, तो वहां पे स्टेम में यहाँ कट पोर्शन उस अनदर प्लांट मौसमी का आप ऐड करोगे। ऐड करने के बाद ओके उसकी स्टेम ऐड करोगे। ऐड करने के बाद व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे? आप इनको वैक्सी लेयर से कवर कर दोगे, टाइटली बांध दोगे। ओके और ये वैक्सी कवरिंग होनी चाहिए। वैक्सी कवरिंग, वैक्स से कवर करोगे। वैक्स क्या करती है बेटा? एक तो प्रिवेंट करती है डिहाइड्रेशन को, वाटर को लॉस नहीं होने देगी। ओके नेक्स्ट क्या होगा? अगर आप ऑब्लीक कट या वी कट देते हो, वी कट का मीनिंग इन दिस वे, ताकि एक वी कट नीचे और दूसरा क्या होगा ऊपर वाला इन दिस वे आएगा, इजीली फिट हो जाए। एक वी कट और एक इन्वर्टेड वी कट, ताकि दोनों प्लांट्स के जो वेस्कुलर बंडल्स होती हैं, वेस्कुलर बंडल का मीनिंग क्या होता है? वेस्कुलर बंडल मीन्स द जाइलम और द फ्लोएम, वो दोनों क्या हो जाएं? इजीली अटैच हो जाएं। जैसे ही वो इजीली इससे यहाँ पे वेस्कुलर बंडल अटैच हो गए तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है वो
स्टार्ट हो जाती है। तो आप क्या देखोगे, नीचे वाले केस में तो क्या आएगा, आपके मौसमी वाला प्लांट ग्रो करेगा और ऊपर में क्या करेगा, लेमन वाला प्लांट ग्रो करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक ही प्लांट से 2 डिजायरेबल फ्रूट्स जो है वो ग्रो किए। तो जो ग्राफ्टिंग होता है बच्चे, ग्राफ्टिंग इज जनरली अकर्स इन केस ऑफ द फ्रूट्स। एम आई क्लियर? ग्राफ्ट का मीनिंग ही होता है कट करना, ओके, कट करके टाई करना। एम आई क्लियर? सो दिस वाज द सेकंड टाइप विच इज द ग्राफ्टिंग. So as I have explained here the example, one important thing which you have to keep in mind that we have to consider the plants of the same family. अगर एप्पल लिया उसके साथ लेमन कंसीडर करोगे, then in that case artificial vegetative propagation will get failed. Now let us start to study the third part, which is the layering. So what happen in case of the layering, if we talk about the third type, which is the layering. Layering का सबसे यूनिक फीचर होता है, कीप इन माइंड, यूनिक फीचर एक ऐसा फीचर जो उसको दूसरे मेथड से अलग करता है. Here we will consider that part of the stem which is soft and flexible. अगर stem का portion hard है, then this process is not successful. So we have to consider, we will consider soft and flexible part of the plant. For layering. Am I clear? अब लेयरिंग जो मैंने आपको बताया है, लेयरिंग होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ जैस्मीन. लेयरिंग भी बच्चे फर्दर 2 टाइप का होता है, एंड दोज टाइप्स आर, वन इज mound layering and the second one is the air layering. Air layering, the another name for air layering is the gutti. Am I clear? So let us start to study in the detail that what exactly it is. But now I will only explain the procedure. You have to write down also the procedure in your notes. So what happened? Say this is the plant. This portion bearing leaves in this way. तो what we will do, हम उस लीफ पोर्शन को कंसीडर करेंगे जो सॉफ्ट है. सपोज हमने ये स्टेम का पोर्शन लिया, इसको हमने क्या किया, इसको बेंड किया और कहाँ ले आए, अप टू द ग्राउंड लेवल. हम इसको यहां से ले आए और यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ही लेके आए ऐसे बेंड हो गई. हमने सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ वी शेप कट लगा दिया. ठीक है, इसको हम नोच भी कहते हैं. यहां से लीव्स को क्या कर दिया, प्लक ऑफ कर दिया, रिमूव कर दिया और क्या किया, इसको वी शेप कट दिया, जिसको आप नोच भी कहते हो. देन हमने क्या किया, इसको कवर कर दिया सॉइल से, दिस पोर्शन को.
ओके और उसके बाद क्या किया हमने, आर्टिफिशियली इसमें ऐड किया न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीन। ऑक्सीन बच्चे क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन। ऑक्सीन को ऐड किया, मैन्योर, फर्टिलाइजर, वाटर की सप्लाई की। तो फ्यू डेज के बाद व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप देखोगे कि इस स्टेम के पोर्शन से रूट्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। अब आप क्या करोगे, इसको यहां से कट कर दोगे तो ये एक अनदर प्लांट हो गया। अब ये आगे ग्रो करेगा और ग्रो करके इन दिस वे न्यू लीव्स को डेवलप करता है। तो यहां तो ये पेरेंट प्लांट था और इसी के प्रोपाग्यूल से हमने क्या किया, अनदर प्लांट की फॉर्मेशन की। हमने उस पोर्शन को, स्टेम को लिया जो सॉफ्ट था, जो फ्लेक्सिबल था, उसको हमने बेंड किया। जैसे ही वो सॉइल से टच करता है, वी विल डू द वी शेप कट एंड आफ्टर देन वी विल अप्लाई द न्यूट्रिएंट्स एंड कवर इट विद द सॉइल. And after few days we will detach it from the parent plant and observe that roots are appeared, and then the plants will completely grow into the new plant. So like in case of the jasmine, okay, it happens. So this is the mound layering. अब air layering के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, एयर लेयरिंग के केस में से दिस इज द अनदर प्लांट. These are the roots parts and this is the branch of the stem having leaves. What we will do, first of all हम क्या करेंगे, we will debark it. हम स्टेम की बार्क को रिमूव करेंगे. बार्क का मीनिंग होता है ऊपर वाली कवरिंग. ओके तो लीव्स को प्लक ऑफ करोगे. तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, इट इज debarked stem. Am I clear? फिर आप क्या करोगे, debarked stem को आप एक पॉलीथीन कंसीडर करोगे और उस पॉलीथीन के अंदर एक पॉलीथीन लोगे और उस पॉलीथीन के अंदर आप क्या करोगे, उस पॉलीथीन में आप स्फेगनम ग्रास डालोगे, जिसको आप मोसिस कहते हो. क्या डालोगे, दिस इज द स्फेगनम ग्रास. स्फेगनम इज अ नेम, मोस प्लांट, स्फेगनम ग्रास, जिसको आप और क्या कह सकते हो, मोस. एंड ऑल्सो यू विल सप्लाई आर्टिफिशियल ऑक्सीन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन सप्लाई करोगे. एंड आफ्टर देन यू विल क्या करोगे, इसको टाइटली टाई कर दोगे. टाई करने के बाद आप क्या देखोगे, फ्यू डेज के बाद इस स्टेम पोर्शन से, डीबार्क पोर्शन से रूट्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं. देन आप क्या करोगे, यहां से इस पोर्शन को कट करोगे एंड वट एवर यू विल डू, आप इसको अनदर पोर्ट में ग्रो करोगे, इस कट पोर्शन को इन दिस वे. तो यहां से क्या होगा, न्यू प्लांट जो है having its own plant part will grow. तो ये न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है. ओके एयर लेयरिंग क्यों हमने कहा, एयर लेयरिंग जो है, यहां पे देखो स्टेम कहीं से भी एरियल शूट था. एरियल शूट का मीन्स इसका जो हाफ पार्ट था वो एयर में सस्पेंडेड था और हाफ जो था वो मेन पार्ट का, मेन पेरेंट प्लांट का, वो सॉइल से अटैच था. तो दिस इज द एयर लेयरिंग. इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, डीबार्क करते हैं स्टेम को. आफ्टर डीबार्किंग हम ऐड करते हैं स्फेगनम ग्रास को, बिकॉज अदरवाइज तो आप ये कहते हो रूट से नया प्लांट की डेवलपमेंट होती है, शूट से नहीं होती. तो लेयरिंग के केस में हमने क्या कंसिडर किया, हमने ये कंसिडर किया कि दोनों में शूट से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है एंड वी हैव टू कंसिडर द सॉफ्ट एंड द फ्लेक्सिबल part. Am I clear बच्चे? So this is the layering. Okay, now we will study the fourth and the most important part, which is the tissue culture. So let's start with the next part.
Hope you are doing the notes of these important concepts, because these notes will help you a lot during your examination. Next is the fourth one, which is the tissue culture. अब तक स्टूडेंट्स हमने 3 टाइप्स को स्टडी किया, एंड वी विल कंसीडरिंग द पार्ट ऑफ द प्लांट, either the root, the stem, or the leaf, or the bud. Now in case of the tissue culture, say this is the leaf. तो first of all हम क्या करेंगे, we will scratch the leaf. हम उसको scratching means घिसना. हम वहां से क्या ऑब्टेन करेंगे, वी विल ऑब्टेन द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड, वी विल ऑब्टेन द टिश्यू ऑफ द लीफ. ओके, तो अगर आपने टिश्यू लिया तो मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट होगा, मैकेनिज्म में इट इज एक्चुअली द बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस. इसको टेक्नोलॉजिकल लैब में किया जाता है, वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन इज रिक्वायर्ड. ओके, तो हमने क्या किया, हमने 2 पैट्री डिशेस को लिया. वी हैव टू कंसीडर 2 पैट्री डिशेस. हमने 2 पैट्री डिशेस को लिया. ओके, फर्स्ट केस में हमने क्या किया, टिश्यू ले लिया लीफ का, टिश्यू ऑफ द लीफ. और इस पैट्री डिश में आपने क्या पोर किया, दिस पैट्री डिश कंटेन द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो आर्टिफिशियली आप हॉर्मोन्स प्रोवाइड करते हो, लाइक इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीन. ऑक्सीन क्या है बच्चे, ऑक्सीन इज ए ग्रोथ हार्मोन इन द प्लांट. बिकॉज प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में आर्टिफिशियली हम स्टडी कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियली जो हम हार्मोन प्रोवाइड करेंगे दैट इज द ऑक्सीन. अब हम क्या देखेंगे, वेन एवर वी पोर दिस टिश्यू प्लांट इनटू दिस medium, then what will happen, this tissue it will start dividing, है ना, this tissue will start dividing. और ये क्या करेगा, डिवाइडेशन से in this way it forms number of cells or the group of cell, and this group of cell is called the callus. callus क्या है, callus is the group of cells. Callus is the group of the cell. How the callus is obtained? Here we will consider the tissue of the plant part. This tissue will start dividing and form the group of the cell, and this group of cell is called the callus. Now what we will do, we will transfer it into the another medium, okay, that contain the nutrients. And here these are the group of the cell. Whatever you will observe into the culture media, next is the culture media, the small plantlets, they will start developing from these cells. Now what we will do, we will transfer these plantlets into the pot. तो हेयर वी हैव ट्रांसफर. तो आप क्या देखोगे, यहां से एक कंप्लीट न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है. तो यहां आपने क्या किया, टिश्यू कल्चर में आपने टिश्यू को कंसीडर किया, टिश्यू ने डिवाइड करके कैलस फॉर्म किया, कैलस को आपने अनदर कल्चर मीडियम में ट्रांसफर किया, एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि उन प्लांटलेट से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है. ऑर्चिड आपने सुने होंगे, तो ऑर्चिड इज द बेस्ट एग्जाम्पल
ऑफ टिश्यू कल्चर। ऑर्चिड, क्राइजेंथेनम भी यही होता है, क्राइजेंथेनम। So these are the examples of the tissue culture. So you have to write down the techniques in your notes, that how we will perform the tissue culture. Now the last and the most important question which usually comes into your exam, and that is the advantages of artificial vegetative propagation। एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। तो यहाँ पे क्या है एडवांटेजेस, कि आप जो प्लांट ग्रो करोगे वो क्या होगा, डिजायरेबल फीड कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो फर्स्ट इज टू गेट प्लांट विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी ग्रोन, बच्चे टिश्यू कल्चर जो होता है ना वो यूजुअली नहीं होता, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कल्चर मीडियम की नीड होती है तो वो एक्सपेंसिव है। ओके, लेकिन रेस्ट ऑफ द फोर विच वी हैव स्टडीड, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, वो क्या है, दैट इज द इजी एंड cheap method. So this method is easier and cheapest except in tissue culture. क्लियर हो गया बच्चे। नेक्स्ट जो होता है फोर्थ वन, जेनेटिकली identical plants can be grown। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मीन्स अगर आपने रोज का लिया तो रोज की स्टेम को कट करने के बाद सेम रोज ग्रो करेगा, सेम वैरायटी का ही करेगा। फिर बैम्बू के केस में भी सेम करेगा, जैस्मीन के केस में भी सेम करेगा, तो एग्जैक्टली पेरेंट्स के जैसा होगा। तो दैट्स व्हाई जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। ओके, एंड फिफ्थ वन इज द वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी ग्रोन। मीन्स कोई भी जर्म इंक्लूडिंग प्लांट जो है वो हम ग्रो करेंगे, देन दैट विल गेट फेल बिकॉज ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। तो ह्यूमन दे विल प्रोवाइड टाइम टू टाइम द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ। Am I clear? So let's take a recap. Today we have studied the artificial vegetative propagation, and under this main concept we have studied the four process. One is the cutting, second one is the layering, third one is the grafting, and fourth one is the tissue culture. And finally we studied what are the advantages of the artificial vegetative propagation. So today students we have completed finally the vegetative propagation, which is a part of the asexual reproduction, but we consider it as a part of the sexual reproduction because it happens only in case of the plants. So with this, thanks.